Good morning, students. Today we are going to discuss another topic, that is semi-technical description of a typical flowering plant in the chapter Morphology of Flowering Plants. Now let us discuss something which is new for all of you. Let me tell you, when you describe a plant as such, any flowering plants, there are certain things which are described first. For example, the habitat of a flowering plant, then the parts of a flowering plant. There are certain rules and regulations if you describe a flowering plant as such. For example, you describe the vegetative parts or the morphology of the flowering plants as such, root, stem, first of all root, stem and leaves, because these are the morphological parts of the plant, and then we describe about the flower. When flower is being described, care has to be taken that the outer parts of the flower, the parts which is the outermost part of the flower, has to be described first. For example, sepals, or you can also call as calyx. Then we describe about corolla, you also call it as petals. Then androecium or stamen, that is the male reproductive part, and finally the female reproductive part, that is called as gynoecium or pistil. Now, how many parts of each wholes, WHORLS wholes, are present that can be represented in a structure, in a diagram, that is called as floral diagram. That can even be represented in a formula, that is called as floral formula. Now we are going to discuss about floral diagram as well as floral formula today. We will see how it is drawn. You will come to know that all the parts, suppose there are 4 petals that can be easily drawn in a floral diagram and can easily be represented in a floral formula. Gynoecium, suppose it is superior, it can be easily represented in a floral formula. If there are 6 sepals or 4 sepals, that can be easily drawn in a floral diagram and can be represented in a floral formula. So this topic is new for you, and moreover it is interesting. Okay, we'll be starting with this. In order to represent something diagrammatically, floral diagram is important. It will show you the number of parts of the flower, that is calyx, corolla, androecium and gynoecium. Moreover, it will also show you that certain parts, if suppose they are connected with another part, that can also be represented. In how many numbers these parts are present. Suppose androecium or stamen is present in 2 bundles, that can also be represented in floral diagram. Gynoecium is consists of only 2 carpels, and it is, suppose it is superior, the ovary is superior, that can be represented in floral formula. So there are certain aspects we will be seeing, but first of all we will look at the symbols which are used in floral formula. We will first of all floral diagram and floral formula. First of all, we will look at all the symbols which are used in floral formula, and then we will draw a floral diagram. Okay, now you know this condition is represented when the flower is bisexual. Flower is bisexual. That means it has both male and female reproductive organ.
This condition is represented when flower has only male reproductive part. Male reproductive organ is present. Organ is present. This condition is represented when only female reproductive organ is present. Female reproductive organ is present in a flower. Then about symmetry of a flower. Let us now discuss about the symmetry of flower. This condition, this symbol denotes that the flower is actinomorphic. Actinomorphic. This condition denotes that the flower is zygomorphic. फ्लावर क्या है? जाइगोमॉर्फिक है. ऐसी कंडीशन, ये कंडीशन डिनोट करती है कि फ्लावर क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक. ये कंडीशन डिनोट करती है कि फ्लावर क्या है? जाइगोमॉर्फिक है. अच्छा, इसके बाद कुछ और बातें हम लोग. एडहेशंस. एडहेशंस का मतलब होता है, सपोज एंड्रोशियम इज कनेक्टेड टू द सेपल्स और पेटल्स, तो उसको भी सिंबॉलिकली डिनोट किया जाता है. नाउ कैरलेक्स के लिए हम लोग सी लिखते हैं, सॉरी के लिखते हैं. दिस सिंबल डिनोट्स कैलेक्स. व्हेन इट इज फ्री इट इज नॉट रिटन इन अ ब्रैकेट. लेकिन अगर फ्री ना हो इट इज रिटन इन अ ब्रैकेट. इफ इट इज गैमोसेपेलस it is written in a bracket. If it is free it is written without bracket. That means it is polysepalous. It is free, it is not fused. Okay, calyx is free and here we write calyx is united. Okay, now let us again describe about corolla. I should rub it first. Erase this. C denotes corolla. If it is free, it is without bracket. If it is united, it is with bracket. Now about androecium, it is represented by A. Suppose it is present in two bundles. In one bundle there are 2 stamens and in other bundle there are 4 stamens. It will be represented 2 plus 4. Gynoecium, it is represented by G. Now gynoecium can have ovary which can be superior और बाइकार्पिलरी. 2 कार्पल्स प्रेजेंट हैं और ओवरी जो है अगर सुपीरियर है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे. मोनोकार्पिलरी है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे. सुपीरियर ओवरी है तो मोनोकार्पिलरी एंड सुपीरियर ओवरी. अगर मोनोकार्पिलरी ओवरी है और इंफीरियर है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे. So these are the methods in order to represent these parts, floral parts in a floral formula. पेरियंथ को जैसे सेपल्स और पेटल्स यूनाइटेड है, दैट इज कॉल्ड एज पेरियंथ. हम सिंपली पी रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे. Okay, so I think I have
discussed about floral formula. Now let us discuss about floral diagram. फ्लोरल डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें कैलेक्स को रिप्रेजेंट करना होता है, दैट इज प्रेजेंट ऑन द आउटर मोस्ट पार्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हम मान लीजिए ये कैलेक्स बना रहे हैं, अभी कैलेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए फ्लोरल डायग्राम बना रहे हैं। ये हमने सबसे बाहर बनाया हुआ है, सबसे आउटर मोस्ट पार्ट में। आप देखो दो अंदर है और दो एकदम बाहर, दोनों एजेस इसके बाहर की तरफ हैं, इन दोनों के ऊपर है। यहाँ भी ये दोनों एजेस जो हैं बाहर है, इन दोनों के ऊपर। तो इस तरह के एस्टिवेशन को इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन कहते हैं। कोई रूल नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। ट्विस्टेड होता तो एक अंदर होता, ये ऊपर होता, एक इसके नीचे होता, एक ऊपर होता। वॉल्वेट होता तो एक दूसरे के मार्जिन को टच नहीं कर रहा होता। तो एस्टिवेशन के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसी हिसाब से ये है। तो ये मदर एक्सिस इन रिस्पेक्ट टू अदर फ्लोरल मेंबर्स इज रिप्रेजेंटेड एट द टॉप पार्ट ऑफ द फ्लोरल डायग्राम। यहां पर रिप्रेजेंट किया है हमने मदर एक्सिस। ओके, ये कैलेक्स को रिप्रेजेंट किया है। अब कोरोला को, अगर कोरोला वॉल्वेट है, यानी कि इसके जो पार्ट्स हैं वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, इसके एंड मार्जिन्स, ये वाला मार्जिन और ये वाला मार्जिन, ये वाला मार्जिन और ये वाला मार्जिन, ये वाला मार्जिन और ये वाला मार्जिन, और ये वाला मार्जिन और ये वाला मार्जिन अगर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं और दोनों के बीच में गैप है, ये 4 नंबर में है, तो 4 बार हमने इसको बनाया है, 1 2 3 और ये 4। ये वॉल्वेट एस्टिवेशन है। आप देख रहे हो कि एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। और एस्टिवेशन की डेफिनेशन के हिसाब से एस्टिवेशन is actually the arrangement of sepals and petals with respect to other floral members present in the flower। तो ये वॉल्वेट एस्टिवेशन है। वॉल्वेट एस्टिवेशन में दोनों मार्जिन्स जो होते हैं किसी भी फ्लोरल सेपल्स या पेटल्स के, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते और 4 नंबर में प्रेजेंट है, इसीलिए हमने इसको 4 बार लिखा है, 1 2 3 और 4 बार ड्रॉ किया। इसके बाद सबसे पहले कैलेक्स आता है, फिर हम कोरोला रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इसके अंदर एंड्रूशियम और गायनीशियम रिप्रेजेंट करते हैं। एंड्रूशियम रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसमें मान लीजिए 6 एंड्रूशियम है, तो आप ये 6 स्टेमेंस हैं, तो आप इसका सिंबल ऐसे बनाएंगे, एक बार इसको किसी दूसरे उससे बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 4 बार बनाया, और 2 अलग ऐसे बना दीजिए बाहर की तरफ। ये जो आपने बाहर की तरफ बनाया है, 4 तो एक तरफ बनाया है और 2 अलग अलग बनाया है, बाहर की तरफ बनाया है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि एंड्रूशियम जो है वो डायडल्फस है, यानी कि 2 बंडल्स पे प्रेजेंट है। एक बंडल में 4 स्टेमेन है और दूसरे बंडल में 2 स्टेमेन है। तो यही वजह हमने इसको, हम यहाँ हो सकता है ठीक से दिखाई ना दे रहा हो ब्लैक बोर्ड पे, तो हम यहाँ बता देते हैं आपको। जैसे कि सपोज आपने स्टेमेंस बनाए हैं, एक ऐसे
दूसरा बनाया है आपने ऐसे, तीसरा बनाया है आपने ऐसे, और आपने चौथा बनाया है ऐसे। दो अलग बना देंगे आप, जैसे कि ऐसे बना देंगे या कहीं और बना देंगे। इन लोगों के अलाइनमेंट में नहीं बनाएंगे, ऐसे बना देंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये चार एक तरफ बने हुए एक बंडल में प्रेजेंट है और ये दो अलग है, अलग बंडल में प्रेजेंट है। तो ये रिप्रेजेंट करता है 4+2, यानी कि टोटल 6 स्टेमन है, 4 एक बंडल में है और 2 एक बंडल में। इसके बाद सबसे बीच में जो है वो गायनीशियम बनाया जाता है, एकदम अंदर की तरफ यहाँ पे। और 2 कार्पस बनाने के लिए आप इसको सिंबॉलिकली ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब आप सिंपली ऐसे लिखिए, ऐसे ड्रॉ करिए और आप ऐसे यूं एक बार अंदर ऐसे बनाएंगे, इसके अंदर बनाइए। हम अलग से इसलिए बना रहे हैं ताकि वहाँ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत छोटा बना है। तो ये हो गया। तो ये देखिए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका सेपल्स और कैलेक्स। और कैलेक्स, इसका एस्टिवेशन क्या है? इसका एस्टिवेशन है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन और इट इज 4 इन नंबर, 4 इन नंबर। फिर इसके अंदर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पेटल्स या कोरोला। और इसका एस्टिवेशन क्या है? वॉल्वेट एस्टिवेशन है, वॉल्वेट एस्टिवेशन है। कितने नंबर में है ये? 4 इन नंबर, 4 नंबर में है। फिर इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है ये स्टेमेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जितना भी पर्पल कलर में दिया हुआ है। ये टोटल 6 हैं और 2+4 हैं, 2 अलग बने और 4 एक जैसे। 4 एक सर्कल में बने हैं, 2 एकदम अलग बाहर की तरफ बने हैं। तो 2+4 का मतलब होता है डायअडल्फस कंडीशन। दे आर प्रेजेंट इन 2 बंडल्स। एक बंडल में तो 2 स्टेमेन है और दूसरे बंडल में 4 स्टेमेन है। और अंदर वाला ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो गायनीशियम रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि 2 कार्पल्स बने हुए हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ओवरी है वो बाइकार्पिलरी है। ओके, ये तो हो गया फ्लोरल डायग्राम के बारे में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट फ्लोरल फॉर्मूला। इसी को फ्लोरल फॉर्मूला में कैसे लिखेंगे? फ्लोरल फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम बाहर की तरफ फ्लावर की सिमेट्री के बारे में बताते हैं। ऐसा सिंबल बनाया हुआ है हमने, तो इसका मतलब होता है कि फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, रेडियल सिमेट्री है। कहीं से भी कट करिए फ्लावर को, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ्स, सो दैट इज actinomorphic symmetry. Then we describe about the reproductive parts present in a flower. Bisexual flower है, both male और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यहाँ प्रेजेंट हैं। फिर कैलेक्स के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। कैलेक्स आप देखोगे तो ये 4 कैलेक्स प्रेजेंट हैं टोटल, लेकिन 2 अंदर की तरफ हैं और 2 बाहर की तरफ हैं। तो इसको आप रिप्रेजेंट करने के लिए 2+2 यूज कर सकते हो। ये हो गया कैलेक्स। कोरोला में आप देखिए चारों एक ही हैं लेकिन ओवरलैप नहीं है, तो आप सिंपली C और नीचे 4 लिख दो ऐसे। एंड्रूशियम में देखिए 2 अलग हैं और 4 एक ही सर्कल में हैं, तो एंड्रूशियम A 2+4 ऐसे लिख सकते हैं आप। फिर गायनीशियम बाइकार्पिलरी और सुपीरियर है, तो G2
और सुपीरियर के लिए नीचे की तरफ एक लाइन खींची जाती है, एक लाइन ड्रॉ की जाती है, दैट रिप्रेजेंट सुपीरियर ओवरी। अगर यही लाइन ऊपर बनी हो तो इसका मतलब होता है इंफीरियर ओवरी। सो सी दिस इज द फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेल। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।